ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مساجد میں خصوصی عبادات، نوافل اور محافل ذکر کا اہتمام۔ شب معراج کے حوالے سے علماء کرام خصوصی خطبات کر رہے ہیں، جن میں واقعہ معراج اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ فرزندان اسلام کا اپنی حاجات کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا سلسلہ جاری۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر سیاسی قیادت کا شب معراج کے بابرکت اور روح پرور موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد۔ اپنے پیغامات میں کہا کہ شب معراج امت مسلمہ کے لیے عظیم روحانی اور ایمانی اہمیت کی حامل رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا۔ شب معراج ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور اس کے ذریعے فرد اور معاشرہ اخلاق روحانی اور عملی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ شب معراج کو امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، جو خالق اور بندے کے درمیان براہ راست مسلسل تعلق قائم کرتی ہے۔ شب معراج مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ ترجمان اسپارٹو نے 21 جنوری کو یکم شعبان ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شعبان 1447 ہجری کا نیا چاند 19 جنوری کو رات 12:52 پر پیدا ہوگا۔ ترجمان کے مطابق جنوری کی شام چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یکم شعبان متوقع طور پر 21 جنوری 2026 کو ہو سکتا ہے۔ شعبان کے آغاز کا حتمی اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کی اہم ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال۔ عطا طاہر نے بتایا کہ قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام ملک میں امن کے فروغ کے لیے عمل میں لایا گیا۔ کمیٹی نے گزشتہ عرصے میں دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کمیٹی بیانی کی جنگ میں صف اول میں کردار ادا کرے گی۔ قومی پیغام امن کمیٹی افواج پاکستان اور سیکورٹی اداروں کے جوانوں کے پاس بھی جائے گی، تاکہ نوجوان نسل میں امن کے پیغام کو مضبوط کیا جا سکے۔ راغب نعیمی نے اس موقع پر کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خاران میں دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اب دہشت گردوں کا فوکس بینک لوٹنا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو موقع پر مار دیا گیا۔ فرار ہونے والے مزید 8 دہشت گردوں کو بھی جہنم حاصل کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کہا کہ دہشت گرد بلوچ عوام کے پیسے لوٹنے کے لیے خاران میں داخل ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال 900 دہشت گرد مارے گئے۔ خاران کے لوگوں نے دہشت گردوں کو مسترد کر دیا۔ 3 ارب روپے سے بلوچستان کے تمام سرکاری اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں اور اسپتالوں میں فائبر انٹرنیٹ فراہم کریں گے، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ دشوار گزار راستوں اور شدید موسم کے باوجود پاک فوج ہمہ وقت عوامی خدمت کے لیے پرعزم۔ اپر چترال میں فلائنگ کوچ کو حادثہ، پاک فوج کی بروقت امدادی کارروائی سے کئی قیمتی جانوں کو بچا لیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پشاور سے چترال جانے والی کوچ کو کوراخ سے مقام پر دریا کے کنارے حادثہ پیش آیا۔ گاڑی میں 13 مسافر سوار تھے۔ زخمیوں کو بروقت ابتدائی طبی امداد کے بعد THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ پاک فوج کی جانب سے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے گرم لباس فراہم کیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بن گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے باعث خالی ہوا تھا۔ محمود خان کو بانی PTI نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا تھا۔ GUI کا محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنوانے میں نواز شریف کے کردار ادا کرنے کا انکشاف۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری نواز شریف نے کروائی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا دعویٰ، کہا کہ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کر بھی لیں تو بھی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہونی۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، بولے وہ صرف چاہتے ہیں کہ بانی کو سائڈ پہ کر دیں اور یہ ہمارے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ چائے بسکٹ کھائیں تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ اپوزیشن سے مل رہے ہیں۔ سب اچھا ہے لیکن ہم اس جھوٹ کو دبنے نہیں دیں گے۔ اڈیالہ جیل حکومت پنجاب کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ یہ معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے۔
वफाकी हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। बानी PTI से मुलाकात न कराने के मामले पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। इजलास में PTI अरकान ने बानी PTI से मुलाकात कराने का मामला उठा दिया। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में है और इस हवाले से सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट स्पीकर ऑफिस में जमा कराई जा चुकी है। ये मामला अदालत और जेल इंतजामिया के दरमियान है। वफाकी हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। 9 मई जलाओ घिराव केस अलीमा खान, फवाद चौधरी और दीगर की उबूरी जमानतों में तौसी। अदालत का मुल्जिमान की उबूरी जमानतें 13 फरवरी तक बढ़ाने का हुक्म। असद उमर उबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत में पेश। अलीमा खान, उज़मा खान और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को बहस और दलाइल के लिए तलब कर लिया। केस की समात ATC जज अरशद जावेद और मंजर अली गुल ने की। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मोदी सरकार ने अमरीकी दबाव में आकर घुटने टेक दिए। मुफादात के उसूल के खातिर ईरान से किए गए मुआहदे तर्क कर दिए गए। भारत की दोगली पॉलिसियाँ बेनकाब। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। भारतीय मीडिया का दावा। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। चाबहार बंदरगाह से मुमकिन तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। माहिरीन का दावा। कहा कि अमरीकी पाबंदियों से कंपनी और उसकी असलियत सामने आने का कभी इम्कान था। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब। सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। हुकूमत अवाम को सेहत सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के आज़म का तसलसल है। सेहत होगी तो नौजवान खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला, लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले हुकूमत सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। प्रोग्राम 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाक इंडोनेशिया ताउन से मुतालिक बैनुल वज़ारती इजलास मुनक़िद। पाक इंडोनेशिया सेहत के शोबे में ताउन का जायज़ा लिया गया। सदर इंडोनेशिया के दौरे पाकिस्तान के बाद पेशरफ़्त पर गौर किया गया। सेहत के शोबे में पाक इंडोनेशिया ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर सेहत और आला हुकाम की बैनुल वज़ारती इजलास में शिरकत। इसहाक़ डार का पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट और असम्बलियों में दाखिले से रोक दिया गया। कौमी असम्बली के 32, पंजाब के 50, सिंध के 33 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। KP असम्बली के 28, बलूचिस्तान के 7 और सेनेट के 9 अरकान शामिल। वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अहम सियासी शख्सियात भी मुअत्तल फहरिस्त में शामिल। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से पार्लियामेंट हाउस में कारोबारी वफ़द की मुलाकात। ताजिरों, सरमायाकारों, सनतकारों ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, सनती शोबे में कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कारोबारी बरादरी ने दरपेश मसाइल और तजावीज़ कायम मकाम सदर के सामने रख दी। तबनाई, बचत, कंट्रोल ग्लास के इस्तेमाल पर कायम मकाम सदर को ब्रीफिंग। ताजिर और सनतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सनती और तिजारती तरक्की से रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का ताजिरों के वफ़द से खिताब। कहा कि हुकूमत सरमायाकार माहौल दोस्त फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआवन हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत SME लैंडिंग से मुतालिक आला सतह इजलास। कैश नाउ सप्लाई चेन फाइनेंस थिंक टैंक की जानिब से SME फाइनेंसिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। SMS को फाइनेंसिंग की फराहमी में दरपेश मसाइल और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर गौर। खत्ते की उभरती मईशतों के मुकाबले में पाकिस्तान में SME फाइनेंसिंग इंतहाई कम है। थिंक टैंक की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत क्रेडिट और फाइनेंसिंग तक रसाई को वुसअत देने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हारून अख्तर का इजलास से खिताब। कहा मुल्क में लाखों SMEs काम कर रही हैं और सप्लाई चेन फाइनेंस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जाली आवाज़ बनाकर पैसे मांगने का इंकशाफ। कहा मेरी आवाज़ में कॉल करके
पैसे बटोरने की कोशिश की गई। दौरान इजलास एजाजुल हक ने कहा, मेरे पास 19 चालान आ चुके हैं। एमएनए आलिया कामरान ने कहा कि फ्रॉड की रकम किन अकाउंट्स में जा रही हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि रेंट अकाउंट नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इख्तियार बेग ने ऐवान को बताया कि इस मामले में स्टेट बैंक को भी शामिल कर लिया गया है ताकि फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा सके। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का अहम बयान, कहा कि मरीम नवाज के मंसूबे शफाफ और अवामी फलाह के लिए हैं। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की ओपीडी और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स शोबे सेहत में इनकलाबी इकदाम अच्छे अफसरान को शाबाश और तारीफी असनाद दी जाती हैं। सियासत खिदमत का नाम है, सड़कों पर सर्कस लगाने का नहीं। प्रिंस करीम आगा खान की साहिबजादी प्रिंसेस ज़ारा आगा खान 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गई। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तक़बाल फूल पेश किए। पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी पर प्रिंसेस का सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के शोबों में आगा खान ख़ानदान के किरदार को सराहा। बोले, आगा खान ख़ानदान की खिदमात माशरे की बेहतरी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। आगा खान ख़ानदान की खिदमात सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल कदर और काबिल फ़ख्र है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया गया। कोयटा से कराची के लिए हफ्तावार 3 दिन परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली परवाज़ 199 मुसाफिरों को लेकर शाम 4:32 पर कराची के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मरासला जारी। ये परवाज़ पीर, बुध और जुमे को चलाई जाएगी। इससे कबल इफ्तिताही एयर सियाल परवाज़ 180 मुसाफिरों को लेकर दोपहर 3:15 पर कराची से कोयटा पहुंची थी। नई परवाज़ों के आगाज़ से मुसाफिरों को सफरी सहूलत मैसर आएगी और फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी आएगी। सयाहत के शौकीन अफराद हो जाएं मोहतात। एनडीएमए का 16 से 22 जनवरी के दौरान शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद के बायस गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सवाद, बटग्राम, नारान कागान, गिलियात और मरी में दरमियाने से शदीद बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और पूंछ में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर। इस्लामाबाद में कोई भी गाड़ी एमटैग के बगैर दाखिल नहीं हो सकेगी। बगैर एमटैग गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। बाज़ाब्ता क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। शहर भर में कायम 12 एंट्री पॉइंट्स पर न सिर्फ एमटैग रीडर्स फाल, बगैर एमटैग शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। बगैर एमटैग शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों के अलावा मुख्तलिफ शहरों पर मौजूद दीगर गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम का दावा। डीजी एक्साइज इरफान मेमन कहते हैं, शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे एमटैग लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। शहर भर में 16 मुख्तलिफ मकामात पर एमटैग लगाने की सहूलत फराहम। कराची में मोबाइल ऐप के जरिए ई चालान का नया निज़ाम मुतारिफ। सेफ सिटी कैमरों के बाद पुलिस मोबाइल फ़ोन से भी ई चालान करेगी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस अफसर ऐप से तस्वीर बनाएगा। खुदकार निज़ाम के तहत तस्वीर ई चालानिंग अफसर को मौसूल होगी। ई चालान में खिलाफ वर्जी रिपोर्ट करने वाले पुलिस अफसर की निशानदही भी होगी। पुलिस हकाम का दावा, कहा नया निज़ाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मज़ीद मौसर बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। नोबेल इनाम व्हाइट हाउस पहुंच गया। वेनेजुएला के अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। नोबेल अमन इनाम का तमगा अमरीकी सदर को पेश कर दिया, जिसे सदर ट्रंप ने कबूल कर लिया। ट्रंप ने बयान में कहा कि मारिया कोरेना ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमगा पेश किया, जो बाहमी एहतराम की अलामत है। माशरों ने मुलाकात को मुस्बत करार देते हुए कहा, यह तोहफ़ा वेनेजुएला के अवाम की आज़ादी के लिए ट्रंप के किरदार के एतराफ़ में दिया गया है। बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ का बाबर आजम के शॉट पर रन लेने से इनकार। बाबर आजम ने स्मिथ के फैसले पर नाराजगी जाहिर कर दी। सिडनी थंडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में बाबर आजम ने 11वें ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद डॉट खेलकर आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश की तो स्मिथ ने रन लेने से इनकार कर दिया।
12वें ओवर में स्ट्राइक पर आने के बाद स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर्स के रॉयन हेडले को लगातार 4 छक्के मारकर ओवर में 32 रन बटोरे। बाबर आजम 13वें ओवर में स्ट्राइक पर आए तो नेथन मिक एंड्रयू की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद बाबर आजम गुस्से में जाते जाते बाउंड्री लाइन पर बैट दे मारा। लाहौर में शदीद धुंध के बायस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 मैचेस के वक्त में तब्दीली का फैसला। सराय के मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच का टॉस अब 3:30 बजे और मैच 4 बजे शुरू होगा। PCB ने पहले टॉस 5:30 और शाम 6 बजे कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस 29 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।